Good morning, dear students. So, today we will continue with miscellaneous exercise of sequence and series. This type 2 I am taking. Type 1 is objective that all of you have to solve yourself. There are 10 questions in type 1 objective. So, those are MCQ question. I am 100% sure that all of you will be able to solve those type 1 question. Now, I am taking from type 2 some of the miscellaneous question. So this first question one is in a GP, in a GP, the the term, fourth term is 48 and the eighth term, eighth term is 768. Find the 10th term. Find the 10th term. You have to find the 10th term there. Correct? Now see how we will proceed. Uh, the given information is provided. This is in GP. The fourth term is 48. That is T4, which is ARQ, which is 48. And eighth term T8, which is AR7, is equals to 768. So what we'll do, we'll divide. बड़े में छोटे से डिवाइड कर दीजिए. So AR7 upon ARQ is equals to 768 upon 48. So from here we will get r to the power 4. When you divide this, you will get somewhere 60. So you have r equals to 2. Correct? R equals to 2. When r equals to 2, then you will get a also. So a into r cube 8 equals to 48. Fine. We substitute here. And therefore a equals to, we have 6. Fine. So a and r confirm. So now we will get the 10th term. So that is T10, which is a into r to the power 9, and a is 6, r is 2, 2 to the power 9. Fine. So after multiplying and all, we will have 3072. फाइन. सो क्वेश्चन में क्लियर हुआ डेट. फोर्थ टर्म दी हुई है, एट्थ टर्म दी हुई थी, तो हमने दोनों ए और आर दोनों ही अननोन थे. जब दो अननोन हो तो आपको पता ही है, डिवाइड कर देते हैं, जिससे अपने को आर टू मिला. व्हेन आर टू, तो वहाँ से हमने ए कैलकुलेट किया. सो आर और ए कन्फर्म. सो T10, और हर जगह हमने Tn का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर n-1 ये यूज़ किया. सो इस फॉर्मूला से, ठीक है, इस फॉर्मूला के हेल्प से we are able to get the answer of 10th term. और ये सब जीपी में ही है. फोर्थ टर्म दी हुई थी 48 एंड एट्थ टर्म इज 768. तो अपने को क्या चाहिए था? 10th टर्म T10 चाहिए था. सो वी हैव कैलकुलेटेड T10. ठीक है, डिवाइड कर दीजिए. AR7 अपॉन बड़े में छोटे से डिवाइड किया जाता है. जब भी दो अननोन हो, ए और आर दोनों ही अननोन है, तो इस सिचुएशन में डिवाइड करने से ए कैंसिल हुआ and we have r. r मिल गई तो a मिल गया, और a and r मिल गया तो T10 मिल गया अपने को. करेक्ट. Now look at the second problem. क्वेश्चन नंबर, ये सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक अ रिवीजन हो रहा है आपका. सेकेंड क्वेश्चन आई टुक दिस क्वेश्चन नंबर 3. फॉर अ जीपी a is 4/3 and T7 is given 243 upon 1024. Find R. We have to find our common ratio. ठीक है. Look at this, how we will proceed. We have T7, which is AR6 होगा, and this is given 243 upon 1024. So if you substitute the value of a here, a is 4/3 into r to the power 6 is 243 upon 1024. Therefore r to the power 6
243 into 3 upon 1024 into 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको R6 है यानी 6 का पेयर चाहिए होगा, तो ये तो 3 to the power 5 होती है 343, और ये 3 to the power 1, यहाँ पे ये 2 to the power 6 दिख रहा है, तो इसको हम 4 की पावर में क्यों नहीं कर लें, तो ये 4 का पावर समवेयर ये 5 है एंड इनटू 4, सो ऑल टुगेदर दिस इज 3 to the power 6 और ये 4 to the power 6 आ गया। Therefore r equals to what will happen, 3/4 ऐसा लिख सकते हैं, r to the power 6। So finally r equals to 3/4। This is going to be the common ratio of this problem। ठीक है ना, तो ये जो काम है यहाँ पे जो करना है ये आपको स्मार्टली यहाँ हैंडल करना होगा। हाउ टू कैलकुलेट द होल टू द पावर 6, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर, इसलिए ये सब हमने लिया। आपको इसको आपने अच्छे से समझना होगा, आपको देखना होगा ये R6 है यानी 6 के पेयर्स आपको बनाने होंगे नीचे और ऊपर, तो 3 का ऊपर दिख गया, ये नीचे 4 का दिख रहा है, तो ये 3/4 होल टू द पावर 6, देयरफॉर R इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, T7 दी हुई थी, A की वैल्यू दी हुई थी, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next problem is from again miscellaneous. See the next problem which I have taken. This is question number 6. Find 5 numbers. Find numbers in GP such that their product is 243 and sum of second and fourth terms fourth सम एंड सेकंड एंड फोर्थ नंबर्स कह सकते हो, टर्म्स छोड़ दो, नंबर्स कर दो, सम एंड सेकंड एंड फोर्थ नंबर्स is 10 fine, then we have to find the numbers, clear? So all of you know 5 numbers in GP. What are those 5 numbers in GP? So let the 5 numbers in GP are, what are those? क्या लेते हैं आप? A by R square, A by R, AR and AR square। ठीक है, अब according to question their product is 243। so according to question इनकी product जो दी हुई है AR square into A by R into A into AR into AR square, this is given 243। fine, so there यहाँ पे सारे R कैंसिल हो गए, तो ये A to the power 5 equals to 3 to the power 5 we can write, since 243 is 3 to the power 5, so A equals to 3। A is confirmed now। Second part of the question में लिखा है also what is given, sum of second and fourth number। second is A by R plus fourth number is AR, इसका सम दी हुई है 10। ठीक है, तो यहाँ से अपने को R की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, सो विल पुट द वैल्यू ऑफ A हियर। अब मैं A की वैल्यू 3 डाल दिया, 3/R प्लस 3R इक्वल्स टू 10। सो अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, दिस इज गोइंग टू बी 3R स्क्वायर माइनस 10R। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपने को R की वैल्यू 3 और 1/3 मिल जाएगी। ठीक है, सो R3 और 1/3 हो गए, तो अब हमारे नंबर्स कैसे हो गए जीपी के, सो देयरफॉर नंबर्स
आर व्हेन पहला आर इक्वल्स टू 3 ले लीजिए. सो व्हेन आर इक्वल्स टू 3, 5 नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, वैल्यू डालो ए बाई आर स्क्वायर में. सो दिस इज 3 डाल रहे हो तो पहला क्या आएगा, ए बाई आर है तो 1/3, ए बाई आर स्क्वायर है ना, ये कितना है 3, 3/3 स्क्वायर. सो ये 1/3, फिर आएगा 1, देन 3, 9 एंड 27. ठीक है, और R3 डाला एंड R इक्वल्स टू 1/3 डाला. ए तो वही है, 3 है ओनली, ए इज 3 एंड आर वी हैव 3 और 1/3. पहले 3 डाला तो ये 5 नंबर्स मिले, और जब 1/3 डालोगे 1/3, सो वी हैव 5 नंबर्स, जस्ट उसको रेसिप्लिकेट कर देते हो, 27 आ गया ये. देन वी हैव 9, 3, ठीक है, 1 एंड 1/3. सो ये हमारे नंबर्स हो गए. ठीक है, सो दीज आर द 5 numbers. Look at this. Find 5 numbers in GP such that their product is 1243 and sum of second and fourth numbers is 10. So we took 5 numbers in GPR. This one, ये होता है. According to question इसके product 243 थी, तो उनका product निकाला. So from there we got A equals to 3. Also एक condition provide की थी, second and fourth term का sum 10 है. तो यू अगेन हमने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 3 एंड देन वी हैव आर की वैल्यू 3 और 1/3. और जब नंबर्स में R3 और 1/3 डाला तो हमारे 5 नंबर्स ये और ये निकल के आ गए. ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इन मिसलेनियस. लुक एट दिस. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिस क्वेश्चन इज from your textbook only, question number 9, miscellaneous का. Find the nth term, find the nth term of the sequence, 0.6, 0.66, 0.666 और ऐसे ये बढ़ता जा रहा है. ठीक है, डॉट डॉट डॉट. क्या चाहिए अपने को, nth टर्म चाहिए. ठीक है, सो लुक एट दिस. पहला इसमें ये आंसर, आप इसको कैसे बढ़ेंगे, अपने को nth टर्म चाहिए, अपने को सम नहीं है, nth टर्म चाहिए. तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, T1 को आपने फर्स्ट टर्म लिया 0.6, T2 हमारा क्या है, T2 इज 0.66. ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.06. फाइन. T3 देखिए, T3 विच इज 0.666 है. सो दिस यू कैन राइट 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन. ऐसे आगे बढ़े आप. अगर मुझे इसका Tn लिखना है तो ये कैसा दिखेगा, 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006. फाइन, ऐसा बढ़ता चला जाएगा प्लस अप टू n टर्म्स. ठीक है, दिस विल गो लाइक दिस वे, m टर्म्स. फाइन, तो ये अपने को क्या दे दिया, ये एक सम रेडी हो गया. ठीक है, ये एक जीपी भी फॉर्म कर गया और ये एक अपने को सम भी बना दिया. फाइंड कर रहे हैं हम Tn, बट हमारा ये जो Tn का टर्म आ रहा है वो एक सम भी क्रिएट कर रहा है. इसका a क्या है, 0.6. कॉमन रेशियो क्या लेंगे आप, 0.1. ठीक है, तो इस Tn को सम की तरह की, Tn हम निकाल रहे हैं बट हमारा सम हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. a 0.6, 1 minus r to the power n upon 1 minus r, since r less than 1 है ये. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो फाइनली सिंप्लीफाई कीजिए, ये 6/9 हो जाएगा, पॉइंट गेट कैंसिल.
and here 1 minus 1 by 10 to the power 9. ठीक है, this way we can write the Tn. So I believe all of you understood. Tn निकालना था इस टर्म का 0.6 0.66 इस तरह के टर्म का हमें क्या चाहिए था Tn. So look at this T1 ये हुआ, T2 को मैंने इस तरीके से लिखा, T3 you have seen this way. इसी तरह अप टू एन टर्म्स कैसा चला जाएगा, प्लस प्लस अप टू एन टर्म्स, और ये अपने को एक सम ऑफ ये सीरीज बना दे रहा है, सम हो गया ये इन सभी का, जिसमें ए हमारा क्या है 0.6, आर इज 0.1 विच इज लेस देन 1, तो हमें इसका सम निकाल लेना है फॉर्मूला से. ऑल ऑफ यू नो एस एन ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर वेयर आर लेस देन 1. इस फॉर्मूला के हेल्प से वी हैव एडेड and this is nothing but your Tn. So Tn is going to be this one. ये हमारा nth टर्म हुआ, बट हम जब फाइंड किए nth टर्म तो वो सीरीज की तरह यूज हो गई क्योंकि ये सम बन गया इसका. ठीक है, ऐसे नहीं चाहिए था, हमें nth टर्म चाहिए था, बट nth टर्म खुद एक सीरीज फॉर्म कर दिया, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ा डियर. ठीक है, दिस इज योर Tn. nth टर्म निकला. द गिवन क्वेश्चन 0.6, 0.66, 0.666 डॉट 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 अप टू n टर्म्स. nth टर्म हमारा ये आया डियर, फाइन. बट वो while finding nth term it becomes sum of n terms और then we calculate it. ठीक है, चलिए we'll go to our next problem. Look at this. ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 11. Find sigma r equals to 1 to n r into r minus 3 into r minus 2. फाइन. ठीक है डियर, तो इस तरह के सम की प्रैक्टिस तो आपने अच्छे से कर ली है, करेक्ट. तो देखते हैं इसका सोल्यूशन. क्या करना है इसमें, पहले आपको इंटू कर लेना है अंदर, तो ये r इंटू r माइनस 3 इंटू r माइनस 5 r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6, करेक्ट. दिस विल कम, फिर से इंटू कर लो r से, r इक्वल्स टू 1 टू n. दिस इज गोइंग टू बी r क्यूब माइनस 5r स्क्वायर प्लस 6r. ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया. अब सेपरेट कर दीजिए, तो सिग्मा आर क्यू हो गया ये, माइनस 5 कॉन्स्टेंट आउटसाइड, सिग्मा आर स्क्वायर है ये, आर स्क्वायर वेट, इसको बराबर करने दीजिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा वैसे. सो दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर एंड प्लस 6 कॉन्स्टेंट आउटसाइड एंड सिग्मा आर. ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूलाज ऑफ दीज. अब हमें फॉर्मूला डाल देना है, सिग्मा आर क्यू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 एन प्लस 6 इंटू एन प्लस 1 बाई 2. ये फॉर्मूला डाल दिया. अब हमारा क्या काम है, सिंप्लीफाई करने का. ठीक है, तो अब देखो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन मिल रहा है हर एक टर्म से, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 वी आर गेटिंग कॉमन फ्रॉम ईच टर्म. सो यहाँ रह गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 5 इंटू 2n plus 1 by 3, this much left, and here it is plus 6, correct. ये n into n plus 1 by 2 ले लिया. अब इनसाइड आप एलसीएम वगैरह ले लें, तो n into n plus 1 by 2, यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह लेंगे, so this is going to be 6. ये हो गया 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3n माइनस 20n. ये आप डियर अपने से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ से काम जो है ये आपको खुद से करना होगा, एल्जेब्रा, करेक्ट. नाउ फाइनली पूरी को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस 1
by 2, 3n square, 3n square minus 17n, this is 17n plus 26, ठीक है, अपॉन 2 6 12 हो गया ये. This is your answer of this problem. This is the answer. हो सकता है टेक्स्ट बुक में आंसर इनकरेक्ट दिया हो तो आप चेक कर लीजिएगा. फाइन. सो आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड. अदर डे ऑल्सो वी डिड सम. ऐसा सम किया हमने कल भी. तो देखो आपने इंटू कर दिया आर क्यू माइनस 5r स्क्वायर प्लस 6r, कॉन्स्टेंट बाहर किया, एंड देन वी हैव यूज द फॉर्मूला. आर क्यू का यूज़ किया, आर स्क्वायर यूज़ किया, सिग्मा आर यूज़ किया, एंड देन वी टुक कॉमन, और यू हैव टू डू अलजेब्रा प्रॉपरली. ठीक है, ये अलजेब्रा अच्छे से कीजिए. 3n स्क्वायर है ये. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. जस्ट अलजेब्रा डियर. ये अलजेब्रा को थोड़ा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 3n एंड ऑल दिस. फाइन. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. लुक एट दिस. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सीरीज में ही लिया हुआ है. फाइंड सिग्मा r equals to 1 to n 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to r square upon this is 2r plus 1. ठीक है, this is the sum there. So देख लेते हैं इसमें कैसे सम हो जाएगा. Look at this, how we will proceed. So this is sigma. This is sigma given 1 square 2 square 3 square r square के लिए हमने क्या लिख दिया, एक वापस यहाँ पे सिग्मा r स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना, सिग्मा r स्क्वायर, r इक्वल्स टू 1 टू r कह लीजिए, एंड अपॉन क्या है 2r प्लस 1. दिस इज 2r प्लस 1. करेक्ट. और ये पूरा एक और सिग्मा में r इक्वल्स टू 1 टू n है. ठीक है, फिर से सिग्मा लगाया, r इक्वल्स टू 1 टू n. ये सिग्मा r स्क्वायर कितनी हो जाएगी, द फॉर्मूला है अपने पास, विच विल राइट इन टर्म्स ऑफ r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6. ठीक है, एंड अपॉन क्या पड़ी हुई है 2r प्लस 1. ठीक है, दिस इज 2r प्लस 1. सो ये 2r प्लस 1 एंड 2r प्लस 1 गेट कैंसिल. 1/6 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, एंड इनसाइड हमें क्या मिल गया, r इक्वल्स टू 1 टू n. दिस इज नथिंग बट r स्क्वायर प्लस r. ठीक है, r स्क्वायर प्लस r हो गया. ये आ गया डेयर r स्क्वायर प्लस r. ठीक है, दिस इज प्लस r. फाइन. अब यहाँ से तो आपकी वैल्यू पता है आपको कैसे कैलकुलेट करनी है. यहाँ से आप वैल्यू डाल दें. ठीक है, सो 1/6 पूरा कॉमन है बाहर. दिस इज 1/6 कंप्लीट बाहर कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, और सिग्मा r स्क्वायर और सिग्मा r की वैल्यू डाल दीजिए. इसको आप ऐसे भी यहाँ ब्रेक कर सकते हैं. 1/6 पहला एक सिग्मा r स्क्वायर ये हो गया, और सिग्मा r ये हमने अलग कर दिया. अब हमें इसमें वैल्यू डाल देना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. ये सिग्मा r स्क्वायर हो गया, एंड प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2. फाइन. देन आप इसमें कॉमन लीजिए. n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आया, तो ये 2 6 या 12 हो गया. दिस इज 12. अंदर क्या रह गया, वी हैव लेफ्ट विथ 2n प्लस 1 बाई दिस इज 6, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया तो ये 3 रह गया, एंड प्लस 1. सो फाइनली अपने पास आंसर जो मिल गया, दिस वी आर गेटिंग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 अपॉन 36. ठीक है, एक 2 यहाँ से कॉमन निकाल के इसको छोटा कर सकते हैं. So finally n into n plus 1 into 2n plus n plus 2.
अपॉन 18 रह जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन लेके 36 को कैंसिल किया। सो फाइनल आंसर इफ आई विल राइट, so this is going to be n into n plus 1 into n plus 2 upon 18. This is your final sum. Fine. So देख लो, क्योंकि आंसर जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है तो गलत दी हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा। आप इस पूरे स्टेप्स को चेक कीजिए 1 by 1, ठीक है। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड इस तरह के सम में कैसा करना होता है। यहाँ पे खुद एक सम था तो वो सिग्मा आर स्क्वायर बन गया, फिर इसका फॉर्मूला डाला गया जिससे हमारा 2r + 1 गेट कैंसिल। हमें क्या मिल गया, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर, जिसको हमने फिर सेपरेट कर लिया एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और एंड में ये एलसीएम लेने वाला काम जो है आप अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम, लुक एट दिस from your textbook only, textbook miscellaneous का ही है question number it is given 15, miscellaneous का type 2 का 15 है। find 2 into 6 plus 4 into 9 plus, ये तो आपके लिए मैं होमवर्क लिख देता हूँ, ये आप ट्राई करेंगे, प्लस 6 into 12 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है डियर, दिस सम इज होमवर्क। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इस पहला होमवर्क आज का ये है, सम ऑफ दिस अप टू n टर्म्स चाहिए। मैं आंसर इसका यहाँ लिख देता हूँ, आंसर इज 2n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। ये आपका आंसर दी हुई है, आंसर इज ये अपने को लाना है, ठीक है। ये सम है 2 into 6, 4 into 9 प्लस 6 into 12 अप टू कहाँ तक, अप टू n टर्म्स तक। सो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर ये 14 है हमारा, 14, ठीक है। सो दिस आप ये होमवर्क में ट्राई करेंगे आज, ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर 14 डियर, मैं 15 करके दे रहा हूँ, सो ऑल ऑफ यू कॉपी इट। और क्वेश्चन नंबर 14 टेक्स्ट बुक का ही है, मिसलिनियस का, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 15 आई एम डूइंग। फाइंड, ये भी एक सम है, फाइंड 2 into 5 into 8 प्लस 4 into 7 into 10 प्लस 6 into 9 into 12 into 12 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। दिस टाइम 3 टर्म्स हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो 2 टर्म का ही था, करेक्ट। चलिए, तो मैं इसका एसएन सम अगर इसका करूं तो इस टोटल को मैं पहले इसका हमने आरथ टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, आरथ टर्म तो ही वो सिग्मा में चला जाएगा। तो 2, 4, 6 ये एपी में है, 2, 4, 6 आर इन एपी, आर इन एपी दी हुई है, करेक्ट। तो इसका हमें टी आर निकाल लो, टी एन नहीं निकाल के टी आर निकालिए, बिकॉज वो सिग्मा में डालेंगे तो आर एथ टर्म में ही लिखते हैं आप। तो टी आर इसका क्या हो जाएगा, 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, सो दैट इज 2r, करेक्ट। 2r इज द आर एथ टर्म। फिर हमारा दूसरा है 5, 7, 9, ये भी कहाँ दिख रहा है, आर इन एपी, इसका भी टी आर कर लीजिए कैलकुलेट। सो दिस इज 5 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, सो इसका आ जाएगा डियर 5 आर प्लस 2r प्लस 3, 2r प्लस 3 आ गया। फाइनली वी हैव 8, 10, 12, दिस इज ऑल्सो इन एपी, इसका भी टी आर कैलकुलेट कर लीजिए, 8 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी विच इज 2, सो ये आ गया 2r प्लस 6। तो हाँ, हमारे ये
टी आर टर्म तीनों मिल गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा टी आर लिखूँ डायरेक्ट, सम ऑफ टी आर आर इक्वल्स टू 1 to n टी आर, तो हमें क्या मिलेगा, ये दिस इज नथिंग बट सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n, जितने टी आर वाले वो इंटू हो जाएंगे, तो 2r इंटू क्या मिलेगा, 2r प्लस 3 इंटू 2r प्लस 6, ठीक है। यही होगा टी आर का सम, क्योंकि ये सारे टर्म को जब मैं एंड में टी आर टर्म लिखूंगा तो ये सिग्मा टी आर में ऐसे डाल सकते हैं इस पूरे को, 2r प्लस 3 2r प्लस 6, nth टर्म तो वही है, वही टी आर का सम लिख रहे हैं हम, ठीक है। यानी पूरी क्वेश्चन जो है यहाँ पे टी आर टर्म ये निकल के आएगी, करेक्ट। ये बात समझ में आई सभी को, यस। नाउ अब इसके इंटू कर लीजिए, आर इक्वल्स टू 1 to n, ये जब आप इंटू करोगे तो ये 8r³ प्लस 36r स्क्वायर मिलेगा एंड प्लस 36r, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। ये आप इसको आप चेक कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब हमें क्या करना है, वैल्यूज डालने हैं। 8 कांस्टेंट, ये सिग्मा r³ हो गया, प्लस 36 कांस्टेंट बाहर आ गया, सिग्मा r स्क्वायर प्लस 36 कांस्टेंट सिग्मा r। अब आप वैल्यूज डाल दीजिए इन सबों की, 8 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 आ गया ये, प्लस 36 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 36 इंटू एन प्लस 1 बाई 2, करेक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सारे 2 4 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 2 ये जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 18 से ये सब कैंसिल हो जाएगा। कुछ टर्म हमारे कॉमन भी दिख रहे हैं, सो अगर मैं कॉमन लूँ 2n इंटू एन प्लस 1, ये कॉमन लिया अगर पूरे में, सो वी हैव, आपका टर्म जो रह जाएगा वो n स्क्वायर प्लस, सब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7n प्लस 12, दिस मच आपके टर्म रह जाएंगे। और फाइनली दिस वी कैन राइट 2n n प्लस 1, और अंदर का फैक्टर आ गया अपने को, दिस इज n प्लस 1, और ये आ गया n प्लस 3 इंटू एन प्लस 4। तो फाइनल सम भी लिख लिया जाए, 2n इंटू एन प्लस 1 n plus 3 into n plus 4. This is going to be the final answer of this sum, ठीक है। तो सबके तीनों के टी आर आपने निकाला, तीनों टी आर यहाँ पे इंटू हो गया, दिस वन इंटू करना है आपको, इंटू करके अपने को ये मिला 8r³ 36r स्क्वायर 36r, एंड देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। और डियर यहाँ का जो काम है ये खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कॉमन लीजिए एंड सिंप्लीफाई कीजिए। ये पार्ट इज इम्पॉर्टेंट टू डू योर सेल्फ, ये सारे काम खुद से करो, क्योंकि इसी जगह गलतियाँ होने की ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, करेक्ट। 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4, दिस इज द आंसर। Fine, now I am taking another situation. Look at this. This question is question number 16 in your miscellaneous question. I find 1 square by 1 plus 1 square plus 2 square by 2 plus 1 square plus 2 square plus 3 square by 3 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। दिस इज द सम। तो अगर मैं इसका यहाँ पे भी टी आर की बात करूँ, टी आर इसका क्या निकलेगा, टी आर विल बी, लुक एट दिस, दिस इज गोइंग टू बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही जाएगा अप टू r स्क्वायर, ठीक है।
नीचे पहले वाले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, थर्ड टर्म में, तो rth टर्म में क्या दिखेगा, r दिखेगा. दिस इज गोइंग टू बी r. ठीक है, अंडरस्टूड. टीआर टर्म, nth टर्म अगर अब इसका देखी जाए तो यही आएगा ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर. हर एक टर्म में देखो, पहले टर्म में 1 स्क्वायर, दो टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. जब अगर मैं tn या rth टर्म लूँ तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर होगा ये. ठीक है, अपॉन 1 2 3, तो rth टर्म में r मिलेगा. तो ये हमारा खुद से एक सम बन जाएगा, एक सिग्मा r स्क्वायर, r इक्वल्स टू 1 टू n अपॉन ये क्या आ गई, r आ गई. सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिग्मा r स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला डाल दीजिए, r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 क्या है अपॉन 6. ये हम अभी पहले क्या कर रहे हैं, टी आर निकाल रहे हैं, फिर सम निकालना अभी बाकी है डेयर. तो ये अपने को मिल गया डेयर r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6. ये आ गया टी आर टर्म. अब अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ टी आर. सिग्मा टी आर लगेगा तभी तो सम निकलेगा, हर एक टर्म का सम चाहिए ना. सो r इक्वल्स टू 1 टू n सिग्मा टी आर. ये टी आर निकला, दिस इज टी आर. ये हमारा rth टर्म है या nth टर्म कह लीजिए. अभी rth टर्म या nth टर्म दोनों का मीनिंग यहाँ सेम होता है सम करते समय. ठीक है, सिग्मा टी आर अब क्या हो जाएगा, ये सिग्मा में आ जाएगा डियर. तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6. दिस विल कम. अब यहाँ पे 1/6 कांस्टेंट. अब तो आपको पता है इसमें आप कैसे आगे बढ़ना है, आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए या सेपरेट. पहले तो इनटू करके देख लीजिए इसमें क्या आ रहा है अपने को. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1. अब आप इसके आगे का काम यू हैव टू डू योर सेल्फ. यहाँ पे वैल्यूज डालो, 1/6, ठीक है, एंड 2 सिग्मा r स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा r प्लस ये सिग्मा 1 हो गया तो इसको n लिख दो. सिग्मा 1 इज ऑलवेज रिमेंबर n. सिग्मा 2 क्या लिखते हैं, 2n. ठीक है, सिग्मा 5 क्या लिखते हैं आप, 5n. ठीक है, तो ये अपने को ये छोटे छोटे जो रूल हैं याद रहने चाहिए. सो अब आप यहाँ वैल्यूज डालो डेयर. 1/6 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. ठीक है, प्लस 3 इंटू सिग्मा r n इंटू n प्लस 1 बाई 2 n प्लस n. करेक्ट. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, आप खुद से सिंप्लीफाई करके पहुँचिए आंसर पे. द करेक्ट आंसर इज n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 17 अपॉन 36. ठीक है, ये जो स्पेस छोड़ा मैंने, दिस इज फॉर होमवर्क, आप खुद से करेंगे यहाँ पे. ठीक है, हाउ इज दिस आंसर केम, ये आंसर इज देयर. ठीक है, तो इस तरह के सब में क्लियर हुआ डियर. पहले तो हमें टी आर देखना होता है, या टी एन बोल लो, टी आर बोलो या टी एन बोलो. अंडरस्टूड. सो टी आर निकाला आपने, सिग्मा आर स्क्वायर बाई आर. ठीक है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू डाली, तो ये हमारा टी आर निकला, r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6. अब इन सभी टर्म का सम, तभी तो सम निकलेगा. तो सिग्मा टी आर किया गया, क्योंकि ये तो टी आर जनरल टर्म आया. अगर अब हमें सम चाहिए तो सभी का सम होगा, T1 T2 T3, तभी तो ये सम निकलेगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा. सिग्मा टी आर किया तो सिग्मा के अंदर r प्लस 1 2r प्लस 1 बाई 6 आ गई डियर. अब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर को क्लियर किया, वैल्यूज डाला, और मैंने जो बीच में स्पेस छोड़ा है वहाँ पे आप कॉमन वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे, एंड यू हैव टू मैच दिस आंसर. फाइन.
जिनसे नहीं होगा आई विल सॉल्व, अदरवाइज आप ट्राई करें, यू विल श्योरली गेट दिस आंसर. फाइंड हियर. सो दीज आर फ्यू सम्स इन मिसलेनियस. एक और सिचुएशन देख लें. इस टाइप में बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बट आई एम श्योर कि अब नहीं होगी कंफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 18. इफ 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 it is, plus 3 plus 4 plus 5 plus up to n terms, up to n terms. ठीक है, ये up to n terms न्यूमरेटर है, and denominator is 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus up to n terms. This is also up to n terms. This is equal to 3 by 22. 3 by 22. ठीक है, ये 22 है डियर. फाइंड n. अपने को क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ n. ठीक है, फाइंड n. फाइंड, तो इस तरह का सम आपने देख भी लिया था. तो पहले हम तो देख लें 1 plus 2 plus 3 4 अप टू n टर्म्स क्या मिलने वाला है अपने को. सम ऑफ 1 plus 2 3 plus 5, तो इसको आप समेशन डायरेक्ट r लिख सकते हैं. ठीक है ना. सम ऑफ r, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, वेयर r इक्वल्स टू 1 to n अपॉन. अब नीचे आते हैं. क्वेश्चन को डायरेक्ट हमने ऐसे किया, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर. तो आप क्या लिखते हो उसको? सम ऑफ r, सिग्मा r की वैल्यू 1 डालिए, 2 डालिए, देखिए आ जाएगा न्यूमरेटर. नीचे हमारा क्या मिल रहा है? 1 2 3. तो इसका अगर मैं टी आर लिखूँ, टी आर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये 1 2 3 4 यानी आर आ रहा है, और 2 3 4 ये भी एपी में है, तो इसका टी आर आ जाएगा r plus 1. ठीक है, ये आ गया अब सिग्मा r इंटू आर प्लस 1. ठीक है, which is r equals to 1 to n, and this is given 3 upon 22. Once you have formed this, now nothing it is there. Now we have to substitute the value of sigma r square plus r. ठीक है, फॉर्मूला भी यूज कर लेना है. लुक एट दिस. तो सिग्मा r क्या हो जाएगा फॉर्मूला डियर? दिस इम्प्लाइज, और कह दीजिए, सिग्मा r इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2. डिनोमिनेटर में क्या आ गया डियर? ये सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर भी हो जाएगा. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर. ठीक है, दिस वन वी कैन राइट. तो सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए आप, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस सिग्मा आर हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 22. फाइन. तो हमने वैल्यूज डाल दिया, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर. अब यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में. n इंटू n प्लस 1 बाई 2 दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हमने कॉमन ले लिया. तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये 1 आ गया ऊपर, नीचे भी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. तो नीचे क्या मिलेगा अपने को? 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n प्लस 1. ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 बाई 22. ये कैंसिल हो गया पूरा. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 ऊपर जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 2n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 बाई 22. फाइन, ये आपको क्लियर हो गई. अब यहाँ से n निकालना, आई बिलीव इट्स अ सिंपल वर्क.
आप यहाँ से n निकाल लीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 कैंसिल हो गया, 2n + 4 ये आ गया 22. So n equals to how much it will come? 11 हो गया ये, 18 या 9. n equals to 9 is the correct answer. इस क्वेश्चन का आंसर n क्या हो गया? 9. फाइन. So I believe you understood. 1 + 2 + 3 + 4 अपना सिग्मा r था. नीचे हमने TR तैयार किया r × r+1. तो ये सिग्मा r × r+1 जिसको आप सिग्मा r² + सिग्मा r भी लिख दिया. ठीक है. एंड देन वी हैव यूज द फॉर्मूला. सिग्मा r डाला, सिग्मा r² सिग्मा r. फिर n × n + 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन लिया. ठीक है. एंड देन इट इज क्लियर, इट लुक्स दैट हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है. इस तरीके से n की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं. फाइन डियर. सो विल टेक वन मोर सिचुएशन. लुक एट दिस. इसी टाइप में एक और प्रॉब्लम देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है इन योर मिसलेनियस टेक्स्ट बुक. इफ 1 × 3 plus 2 × 5 plus 3 × 7 plus up to n terms. up to ये कहाँ जा रहा है डियर? n terms अपॉन नीचे है 1 cube, 2 cube, 3 cube plus up to n terms. up to n terms. ठीक है. इज इक्वल टू वी हैव 5/9. तो अपने को क्या चाहिए? फाइंड n. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. इनफैक्ट फाइंड n की वैल्यू क्या होगी? n चाहिए अपने को. सो द प्रीवियस सम की तरह ही अप्रोच होगी इसकी भी. करेक्ट. सो हाउ विल स्टार्ट? तो अपने को पहले ऊपर का देखना होगा TR. अगर मैं न्यूमरेटर का TR देखूं तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये अपना R आएगा, यानी n कह लीजिए. और 3, 5, 7 का 3, 5, 7 जो EP में है इसका TR क्या आ जाएगा डियर? दिस विल बी 2R + 1. R × 2R + 1 आ गया न्यूमरेटर. ये न्यूमरेटर का TR हो गया. ठीक है. डिनोमिनेटर में तो TR कंफर्म है, वो तो सम में आ जाएगा सिग्मा r³. ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टू द आंसर में एग्जैक्ट पहुंचते हैं. सो दिस एक्सप्रेशन, दिस वैल्यू ऑफ दिस वी कैन राइट सिग्मा r = 1 to n ऐसा लिख सकते हैं. एंड r × 2R + 1. ठीक है. न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? सिग्मा r³. ठीक है. होल क्यू है ना ये. तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा r³. एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 5/9. करेक्ट. अब अपने को क्या करना है? वैल्यूज डालने हैं केवल. सिग्मा r², सिग्मा 2r². ठीक है. सो लुक एट दिस. दिस इंप्लाइज सिग्मा 2r² प्लस सिग्मा r ऐसा अलग कर दिया अपॉन सिग्मा r³ विच इज इक्वल्स टू 5/9. अब आप वैल्यूज डाल दीजिए. r = 1 to n लिखा हुआ है, वो नहीं भी लिखा तो आप समझ लो कि वो वहाँ मेंशन है. ठीक है डियर. अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है. दिस इंप्लाइज 2 कांस्टेंट. सिग्मा r² की वैल्यू डालिए which is n × n + 1 into 2n + 1 by 6 plus n × n + 1 by 2. and denominator में क्या है डियर? n² into n + 1 whole square by 4 is equals to 5/6. ठीक है. अब यहाँ से आपको दिख रहा है n × n + 1/2 कॉमन ले लीजिए. अब यहाँ से अलजेब्रा आप खुद से भी कर सकते हैं. मैं चाहूँ तो यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, बट लुक एट दिस कर देते हैं हम. यहाँ n × n + 1/2 न्यूमरेटर में कॉमन लीजिए. सो वी विल हैव 2 ×
2n+1/3 मिलेगा, यानी ये +1 ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में तो आपको दिख ही रहा है ये n+1/2 इंटू n+1/2 है, होल स्क्वायर है ये। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया n+1/2, ठीक है। लुक एट दिस इज 2n, ठीक है डियर, n+n+1/2। सो आपके ये पूरे टर्म कैंसिल हो गए एक n+n+2 से, यहाँ है 5/6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। सो द वैल्यू ऑफ n यू विल गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड ऑल दिस, आपको यहाँ से मिलेगा, इसको एलसीएम वगैरह ले लो, और तो ये आएगा 4n+5/3 इंटू, ये फ्लिप कर गया, 2/n² इज इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। और आगे भी सिंप्लीफाई कीजिए इसको। दिस इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव 15n² माइनस 57n माइनस 90, ये मिलेगा अपने को, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टराइज करके आप n की वैल्यू निकालेंगे, वो आ रहा है n5 और दूसरा आ रहा है -18/15। बट n क्या होता है, टर्म होता है, तो n नेवर बी -18/15, ये तो हो नहीं सकता है, तो इसकी वैल्यू को हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर क्या लिखना पड़ेगा, n इक्वल्स टू 5। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन नहीं होती है डियर, तो n इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव भी नहीं होता है, अगर नेगेटिव आया तो भी नहीं लेने का, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 5। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। n क्या वैल्यू निकली, 5। तो आप वापस 1 बाई 1 स्टेप देखो, फॉर्मूला यूज किया, TR निकाला और सिंप्लीफाई किया। ये पार्ट सब थोड़े जो एल्जेब्रा है वो आपको अच्छे से सीखना होगा डियर। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल रिच हियर, एंड देन यू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, यू विल गेट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमें दो वैल्यूज मिले, n5 और -18/5। सो n इक्वल्स टू 5 इज द फाइनल आंसर। -18/5 नहीं, बिकॉज वो फ्रैक्शन में है, नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो I believe all of you understood these sums. इस तरह के सम में I think all of you are confident now, correct? Now look at this, one more problem in miscellaneous. See the next problem I am taking, this is from miscellaneous only. This question is question number 26. 26 है question number. If Pth, Qth and Rth term of a GP are XYZ respectively, find the value of x to the power q minus r into y to the power r minus p into z to the power p minus q, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, Pth, Qth एंड Rth टर्म ऑफ अ GP इज XYZ। तो लेट, मान लो इसका फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस GP आप ले लो कैपिटल A, एंड कॉमन रेशियो ले लो आप, कॉमन रेशियो कैपिटल R, ठीक है। तो हमें क्या दी हुई है, Pth टर्म, यानी TP से लिखोगे। Pth टर्म क्या होगा, दैट इज A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो, तो ये P-1, ठीक है।
टी क्यू क्या हो जाएगा, क्यूएथ टर्म ए आर क्यू माइनस वन, ठीक है। एंड आर एथ टर्म क्या हो जाएगी डियर, टी आर टर्म ए आर आर माइनस वन, ठीक है, क्योंकि ये हमने फर्स्ट टर्म लिया और आर कॉमन रेशियो ये आ गया। और इनके वैल्यूज भी दिए हुए हैं, ए आर पी माइनस वन क्या है, एक्स है, टी पी एक्स है ना, पी एथ टर्म एक्स है, क्यू टर्म वाई है, आर एथ टर्म जेड है। सो हम ये लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ए आर पी माइनस वन, ठीक है। वाई वी हैव ए आर इंटू आर टू द पावर क्यू माइनस वन, एंड जेड क्या मिल गई, जेड इक्वल्स टू ए आर आर माइनस वन, फाइन। एक्स वाई जेड है अपने पास। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन में है एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर माइनस पी इंटू इंटू में है जेड टू द पावर पी माइनस क्यू, करेक्ट। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दीजिए आप। सो दिस इज ए आर पी माइनस वन होल टू द पावर क्यू माइनस आर। सिमिलरली y की वैल्यू a इंटू आर क्यू माइनस वन होल टू द पावर आर माइनस पी इंटू ए आर माइनस वन एंड होल टू द पावर p माइनस क्यू। सो यू नो देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई। तो पहले मैं a के सारे पावर को एक जगह कलेक्ट कर लूँ, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये आ जाएगा ए का पावर, इंटू करोगे तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। फिर आर का पावर क्या आएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस ये क्या होगा, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फाइनली प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये सारे पावर आ जाएंगे आर के। तो ये होगा ए टू द पावर जीरो, और इसको भी आप जब इंटू करके ऐड करोगे तो दैट विल ऑल्सो कम जीरो। सो द वैल्यू इज वन, ठीक है। ए टू द पावर जीरो वन, आर टू द पावर जीरो वन, सो द आंसर केम वन देयर, ठीक है। सो आई बिलीव ये आपको समझ में आई। पी एथ क्यू आर एथ टर्म ऑफ अ जी पी एक्स वाई जेड था, अपने को ये वैल्यू था। पहले हमने क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म जी पी ए लिया, कॉमन रेशियो आर, ठीक है। देन पी एथ टर्म ए आर पी माइनस वन, क्यू एथ टर्म एंड आर एथ टर्म, ठीक है, पी एथ क्यू एथ आर एथ, जिसकी वैल्यू एक्स दी हुई है, वाई दी हुई है, जेड है। फिर हम क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर, वाई टू द पावर आर माइनस पी इंटू जेड टू द पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने पुट की, बेसिस सेम है और इंटू हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। ये पूरा ऐड किया, ए के सारे पावर वो भी जीरो हो गए, और आप इसको इंटू करके देख लेना, दिस विल ऑल्सो कम जीरो। सो द फाइनल आंसर इज वन, ठीक है डियर। सो दिस वे ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ जीपी। जो कुछ प्रॉब्लम्स आपके और रह गए हैं, दैट ऑल ऑफ यू ट्राई योर सेल्फ, करेक्ट। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर, एक सम मैंने उधर दिया था, दो सम और लिख लीजिए, होमवर्क। फर्स्ट सम तो आपको दिख रहा है वीडियो में। नाउ आई एम गिविंग द सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, खुद से ट्राई करना है सभी को। मिसलेनियस के ही टाइप फॉर्मेट में है, जो प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। दिस सम इज इफ 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus say into up to n terms, to n terms upon 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n terms, ठीक है, up to n terms is equals to 6 है। फाइंड n, क्या चाहिए अपने को, n चाहिए, ठीक है। होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन ये लिख लीजिए, अपने को सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ
n terms. क्वेश्चन है 1 square by 1 plus 1 square by 2 square by 1 plus 2. 1 plus 2. This is plus. फिर है 1 square, 2 square, 3 square upon 1 plus 2 plus 3. ऐसे करते करते up to n terms. ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए. इसका आंसर हमने लिखा नहीं, आपको बताया नहीं. 2 का सेकंड का आंसर देख लो. 7 फर्स्ट. n की यहाँ पे आंसर है n इक्वल्स टू 7. ठीक है, और इनका आंसर देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 2 बाई 3. ठीक है, सो दीज आर क्वेश्चंस होमवर्क 2, 3 और एक क्वेश्चन हमने होमवर्क पीछे भी दिया है. अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए. करेक्ट, एंड श्योरली ट्राई करिए डियर एंड शो मी इन योर होमवर्क. ठीक है, दीज 2 और एक सम मैंने एकदम शुरू में दिया था, तो ये तीनों सम आप अच्छे से ट्राई करेंगे. ठीक है, कैन आई शो यू द फर्स्ट वन? लुक एट दिस समवेयर. यहाँ था. यस, दिस वन इज द फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 1 पहला होमवर्क ये है. 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 12 अप टू n टर्म्स. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क. करेक्ट, कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं. फर्स्ट होमवर्क इज दिस. एक ये हो गया और बाकी मैंने दो लास्ट में जो दिए हैं. लुक एट दिस. सारे मेथड आपने सीख लिया है सीरीज में. ये जितने क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ इस तरह के सम पहले भी आपने कर लिए हैं. ठीक है, लुक एट दिस. ये हमारा सेकंड एंड थर्ड होमवर्क हो गया. ठीक है, चलिए, थैंक यू. ऑल ऑफ यू ट्राई दीज सम्स एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ. डू बेस्ट. So, and any doubt you can ask in a class. Other day मैंने homework के solutions भी provide किए थे because some students have a doubt. So I think this time ये तीनों homework में किन्हीं को doubt नहीं होगा. Sure. So all of you will do it these 3 homework there. Fine. Thank you very much. Take care all of yourself. Bye dear. We'll meet tomorrow's class with a new topic.